ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم یوز کے درمیان اہم رابطہ ہو گیا. فریقین 10 مئی کے سیز فائر کے فیصلے کی تفصیلات کا جائزہ لیں گے. ڈی جی ایم یوز کے درمیان 10 مئی کی سپہر بھی رابطہ ہوا تھا جس میں فوری سیز فائر پر اتفاق کیا گیا تھا. سیکیورٹی ذرائع نے اس رابطے کو اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات کی راہ بھی ہموار ہو رہی ہے جن کے لیے ابتدائی رابطے جاری ہیں. سفارتی ذرائع کے مطابق پاک بھارت سفارتی نمائندگان اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطے جاری ہیں جو ان مذاکرات کے وقت اور مقام کو حتمی شکل دیں گے. افواج پاکستان کا آپریشن بنیاد مرصوص کے ذریعے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا. افواج پاکستان نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا. پاکستان نے متعدد بار بھارت کو خبردار کیا تھا کہ وہ پاکستان کے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے. آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا تھا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور آپریشن بنیاد مرصوص قوم سے کیے گئے اس وعدے کی تکمیل ہے. الحمدللہ آرمی چیف نے قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے یہ کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی طاقت نے بڑی طاقت کو شکست دی. الحمدللہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ افواج پاکستان اور قوم ہر جارحیت کے خلاف پوری قوت سے سیزہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان میں بھرپور دفاعی صلاحیت موجود ہے. ملکی سالمیت کا دفاع کیسے کرنا ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں. 13 لاکھ بھارتی فوج اپنے تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرایا اور دھمکا نہیں سکتی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اور ہم نے اس ملک کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارتی پائلٹ کو حراست میں لینے کی تردید کر دی. صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کے حراست میں نہیں ہے. سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک انداز میں یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستان نے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی بلکہ بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ مسلح افواج چوکس اور تیار ہیں. دوبارہ کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کی صورت میں اس سے زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا. پاک فوج نے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کا اعلان کر دیا. پاک فضائی اور بحریہ کے سینئر افسران کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ترجمان پاک فوج احمد شریف کا کہنا تھا 6 اور 7 مئی کو بھارتی جارحیت کے 22 بچوں اور عورتوں سمیت بے گناہ شہری شہید ہوئے. ہمارے دل اور ہمدردیاں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں. ہم نے بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیاد المرصوص کیا اور مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی مدد سے ہمیں کامیابی ملی. ان کا کہنا تھا پاک افواج نے آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی تمام جگہوں پر جواب دیا گیا جبکہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں فوجی اہداف کو بھاری نقصان پہنچایا گیا. ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ 2 مقامات پر بھارت کے S-400 بیٹری سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا. انہوں نے بتایا بیاس اور نرگوٹا میں براموس میزائلوں کے اڈے پر بھی حملہ کیا گیا اور بھرپور سائبر حملے بھی کیے گئے جن کے ذریعے بھارتی فوج کے زیر استعمال سسٹم کو مفلوج کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے جس کے ثبوت بھی موجود ہیں لیکن کوئی شک میں نہ رہے اور ہمارے خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہے تو بھرپور جواب دیا جائے گا. اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کو دیکھ کر دشمن کی آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی. دوران جنگ پاکستان نیوی بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی. 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نیوی بھی تیار تھی. وائس ایڈمرل رب نواز کی پریس بریفنگ بتایا پاک نیوی نے سمندری حدود کا بہادری سے دفاع کیا. دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار رہے. ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے بتایا بھارتی فضائیہ نے جارحیت کی تو اس کے طیارے مار گرائے. پاک فضائیہ کو بھارت کی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی. ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے. ہم نے ایئر چیف کی ہدایات پر عمل کیا. پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط اور شاندار ہے.
पाकिस्तान फिजाइया के डेप्यूटी चीफ ऑफ ऑपरेशंस वाइस एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने भारतीय अफवाज के अपने ही इलाके को निशाना बनाने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। DGISPR, पाक फिजाई और पाक नेवी की मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डेप्यूटी चीफ ने रडार डेटा दिखाया और बताया कि किस तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय मिसाइलों को नाकाम बनाया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल लॉन्च के सिस्टम में गड़बड़ पैदा की, जिससे उनके मिसाइल भटकते रहे और निशानों पर ना लगे। वाइस एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने बताया कि भारत की तरफ से 3000 किलोमीटर की स्पीड वाले ब्रह्मोस मिसाइल दागे गए, जो इधर उधर निकलते रहे। एक मिसाइल पाकिस्तान से भी आगे मगरबी मुल्क की तरफ गया। उन्होंने बताया कि भारत ने आदमपुर से हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए, जो मशरक़ी पंजाब के इलाके अमृतसर में गिरे। जबकि दूसरी जानिब भारतीय फिजाइया के एयर मार्शल उदेश कुमार ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहा, हम हालत जंग में हैं, जंग में नुकसान होता है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी ने सवाल करते हुए भारतीय एयर मार्शल से पूछा, क्या इस बारे में अदादोशुमार दिए जा सकते हैं कि भारत ने कितने असासे खोए? और ये बैनुल-अक़वामी मीडिया में रफाल तैयारे गिराए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। इस सवाल के जवाब में एयर मार्शल ने कहा कि भारत ने अपने मकसद हासिल कर लिए हैं, खास तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने का हदफ पूरा किया। तमाम पायलट बाहिफाजत वापस आ चुके हैं। एयर मार्शल ने कहा कि नुकसानात के बारे में वो इस वक्त कोई तबसरा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा पहुंचेगा और वो दुश्मन को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। आलमी सतह पर पाक फौज ने भारत पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। बैनुल-अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर लिया, जो इस तारीखी कामयाबी का आलमी एतराफ है। द नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। पाक फिजाई ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फिजाई को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत और अस्करी हिकमत अमली ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। दिफाई माहिरीन का कहना है, दुश्मन को सबक सिखाना पाक फौज खूब जानती है और हालिया फतह इसकी रोशन मिसाल है। आलमी मीडिया ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों को बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के दौरान गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कुछ दिन पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई, जो झूठ पर मबनी थी। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। भारतीय अकाउंट से अमरीकी सदर की भारतीय जारहियत की हिमायत में वीडियो भी शेयर कर दी गई। आलमी मीडिया के मुताबिक फैक्ट चेक से वाज़ेह है कि वीडियो AI से बनाई गई, जबकि अमरीकी सदर ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। दिफाई माहिरीन ने कहा कि भारतीय मीडिया ने हमेशा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर हकाइक पर पर्दा डालने की कोशिश की। आलमी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का असल और मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने पाक फौज की ताकत को तस्लीम कर लिया। कहा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। भारतीय टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि कुछ दोस्तों ने इससे सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। मैं नहीं समझता मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिमजोई का आगाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा, ताहम पाक भारत जंग बंदी की सिताइश करता हूँ। शशि थरूर का कहना था कि दोनों मुल्कों को बिछड़ने खानदानों को मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। जाती तौर पर लोगों से लोगों के राब्ते के हक में हूं, वीजे जारी होने चाहिए। अपडेट करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। OIC ने जारी अलामी में कहा कि मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए मुमकिन है। तंजीम दोनों ममालिक के दरमियान 6 मई से शुरू होने वाली झड़पों के खात्मे को खुशाइन करार देती है। अलामी के मुताबिक जंगबंदी का यह अमल 10 मई को अमरीका और दीगर ममालिक की मुदाखलत से मुमकिन हुआ और इसमें किरदार अदा करने वाले तमाम फरीक तहसीन के मुस्तहिक हैं।
OIC ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इरादा किया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर समेत तमाम देरीना तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। तर्जुमान का कहना था कि तंजीम इस बात पर जोर देती है कि कशीदगी कम करने के लिए इलाकाई और आलमी सतह पर संजीदा कोशिशें की जाएं और इंसानी जानों के ज़िया से बचने के लिए तमाम फरीक़ैन को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हमअंसब इसहाक डार और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। चीनी खबर एजेंसी का कहना है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। चीन को अपने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान मुमकिन कशीदगी में इजाफे पर तशवीश है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है फ़रीक़ैन पुरअमन और मोहतात रहते हुए सूरत हाल मज़ीद ख़राब नहीं होने देंगे। चीन भारत पाकिस्तान मुशावरे से जामे और देर पा जंगबंदी कोशिशों की हिमायत करता है। भारतीय जारियत के दौरान शहीद पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों और मासूम शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा कसूर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, विफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान और रुकने सूबाई असम्बली मलिक सईद अहमद खान ने भी शिरकत की। आला फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान समेत हजारों शहरी भी मौजूद थे। गायबाना नमाज जनाजा के बाद पाकिस्तानी कौम की यकजहती और शोहदा के अहले खाना के साथ इज़हार ताज़ियत का पैगाम दिया। मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआएं भी की गईं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को कभी नहीं भूलेगी और हम उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए हर तरह की कुर्बानी देने वाले हमारे बहादुर सिपाही कौम के हीरो हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न का समा है, जबकि पाक फौज से इज़हार तशक्कुर की रैलियां निकाली जा रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी अवाम ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया और रैलियां भी निकाली गईं। भारतीय जारियत का तारीखी और फैसला कुन जवाब देने पर यौम तशक्कुर मनाने और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में अवामी रैलियों का एहतमाम किया गया। कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की खुशी में अवाम पाक फौज के साथ इजहार तशक्कुर के लिए निकल आई। अवाम घोटकी से हैदराबाद और छोड़ तक मुख्तलिफ मकामात पर टोलियों की सूरत में अपनी पाक फौज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लोगों का कहना था कि पाक फौज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार है और अपनी अवाम का सर हमेशा बुलंद रखा है। पाकिस्तानी अफवाज ने ऐसा जवाब दिया है जो पूरी दुनिया में ऐसा समझो कि सख्ता तारी है। पाकिस्तानी कौम ऐसे समझो कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक पाकिस्तानी अफवाज के साथ हमेशा के साथ आज साथ खड़ी। भारत एक मक्कार दुश्मन है, लेकिन इसकी बदबख्ती ये है कि इसका पाकिस्तान की बहादुर अफवाज से पाला पड़ जाता है। पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा भारत को नाको चने चबवाए हैं और उसको हमेशा मुंह की खाने पड़ी है। पाक फौज की फतह का जश्न मनाने के लिए मर्द, खवातीन और बच्चे भी रैलियों में शामिल थे। रैलियों के शुरका ने इस अजीमुशान फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हक में नारे लगाए और पाक फौज की गाड़ियों और फौजी जवानों पर फूल बरसाए। अवाम का कहना था कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है और हमारा तन मन धन इस पर कुर्बान है। पाक फौज ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। भारत की आने वाली नस्लें भी दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने के काबिल नहीं रहेंगी। इस मौके पर रैली में शामिल तमाम अफराद का जोश खरोश देखने के काबिल था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए उमर अब्दुल्ला का कहना था कि पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो वो पाकिस्तान का मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने का मंसूबा है। उमर अब्दुल्ला का कहना था भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम वाकये के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला, ताहम पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। उन्होंने कहा कि जंग की वजह से इस मुकाम पर आ खड़े हैं जिसके बाद हमें तवक्को नहीं थी। अमरीका मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालसी का किरदार अदा करे।
आगे बढ़े हम आपको बताएं कि सूबाई वजीर मनसूबाबंदी और तवानाई नासिर हुसैन शाह ने इस बात का अज़्म किया कि कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कराची डिवीजन के मुजव्विज़ा तरक्याती मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात नजम अहमद शाह ने मुंतखब नुमाइंदों को तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में कराची डिवीजन के लिए आने वाले बजट में स्कीमों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नासिर हुसैन शाह ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पुरानी जारी स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक यूसी की सतह पर सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमों और पानी के मंसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। नासिर हुसैन शाह ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि 16 स्कीमों को वक्त मुकर्रर पर मुकर्रर किया जाए। इजलास में खुर्शीद शाह, शर्जील इला मेमन, सईद गनी, मुकेश कुमार चावला, सेनेटर वकार मेहदी, इजाज जाकिरानी और कराची से मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और दीगर ओहदेदार शरीक थे। कराची में हुए सानहा 12 मई को 18 साल गुजर गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आजाद हैं। 12 मई 2007 को शहर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, 50 से ज्यादा अफराद मारे गए, लेकिन न कातिल गिरफ्तार हुए न सजाएं हुई। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची में 12 मई 2007 का दिन आज भी खौफ, खून और बेबसी की अलामत है, जब शहर कायद में दिन दहाड़े फायरिंग, कत्ल गारत और बदतरीन बदअमनी ने दर्जनों घरों के चिराग बुझा दिए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर शहर को मैदान जंग में बदल दिया गया। सड़कों पर असलहा बरदार घूमते रहे और कानून खामोश तमाशाई बना रहा। इस अलमनाक दिन में 50 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए, मगर अफसोस 18 बरस बाद भी ना इंसाफ मिला, न मुजरिम पकड़े गए। सानिया 12 मई के सिलसिले में दर्ज 7 मुकदमात में से सिर्फ एक केस का फैसला हुआ, जिसमें तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया, जबकि बाकी 6 मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में ताहाल जेर समात हैं। 12 मई 2007 को कराची में कत्ल किए गए 50 से जायद शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। कराची में ट्रैफिक हादसा थम न सके। डंपर की कार को टक्कर से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। हादसा मंगूपीर के इलाके नॉर्दर्न बाईपास हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया। डंपर की टक्कर से कार में सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि जाँ बहक होने वाले एक शख्स की शनाख्त उसके पास से मिलने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से 22 साला फराज कलंदरानी, वल्द सिकंदर कलंदरानी, 60 साला सलमान और 35 साला उसामा के नामों से की गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले उसामा सुलेमान का बेटा था। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की क़यादत में शहर भर में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 3000 से ज्यादा तजावुजात का खात्मा, 23 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। उसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर सईद, ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की क़यादत में शहर भर में तजावुजात के खिलाफ वसी ऑपरेशन किया जा रहा है और 3000 से ज्यादा तजावुजात का खात्मा किया गया है और 23 ट्रक का सामान भी जब्त किया गया है और मुतअद्दिद बैनर्स, पोस्टर्स और बशिया लूदी का 22 मवाद भी हटाया गया है। इसके अलावा शादरा, जीटी रोड, बागबानपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों से तजावुजात खत्म किए गए हैं। इसके अलावा जेल रोड, निस्बत रोड और माल रोड से गैर कानूनी तजावुजात को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। और MOR काशिफ जलील का कहना है कि तजावुजात हटाने के लिए मुख्तलिफ नोटिस और इंतबाहात जारी किए गए हैं और लाहौर से तजावुजात पाक करने के लिए मॉनिटरिंग और ऑपरेशन भी जारी हैं। इसके अलावा CO MCL शाहिद आवाज काठिया कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं और शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुहिम भी जारी है। और सैयद मूसा रजा का कहना है कि वसी सड़कों तक शहरियों की रसाई यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद।
اور اب بات کریں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیان کی. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت کا حامی ہے. روابط بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی سے ٹیلی فون پر بات چیت میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے جنوبی ایشیائی پڑوسیوں پر جنگ بندی اور رابطہ قائم رکھنے پر زور دیا. امریکی وزیر خارجہ نے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے ٹیلی فون پر الگ الگ بات چیت کی اور یوکرین جنگ پر امریکہ کے موقف کی توثیق کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل سے سعودی عرب کا بطور صدر پہلا غیر ملکی دورہ کریں گے. دورے کے دوران امریکی صدر سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے. خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے. دورے کا بنیادی مقصد سعودی عرب کے ساتھ وسیع سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ ملے گا. صدر ٹرمپ دورے کے بعد 15 مئی کو قطر اور 16 مئی کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. ان ممالک کے ساتھ بھی امریکی حکام سرمایہ کاری دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے اور اہم معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں. کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ پھر سے رنگ جمانے کو تیار. ایونٹ کو ری شیڈیول کرنے کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری. اہم اجلاس آج ہوگا. ملتان سلطانز نے اپنا باقی بچنے والا ایک میچ مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ ہی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا. ٹیموں کو اپنے غیر ملکی کھلاڑیوں کو واپس بلانے کی ہدایت پہلے ہی کی جا چکی ہے. کسی پر واپسی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. تاہم عدم دستیاب پلیئرز کی جگہ ملکی سٹارز ہی میچ کھیلیں گے. لیگ کے فائنل سمیت 8 میچز کے پاکستان میں ہی انعقاد کو یقینی بنایا جا رہا ہے. تمام مقابلے ایک ہی وینیو پر بھی ہو سکتے ہیں. پی ایس ایل سیزن 10 کا بھارت کی جانب سے جارحیت کی وجہ سے ملتوی کیا گیا تھا جب اس کا 27واں میچ راولپنڈی میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے ساتھ 8 مئی کو شیڈیول تھا. اسی روز صبح کو اسٹیڈیم کی حدود میں بھارت کی جانب سے بھیجا گیا ایک ڈرون بھی گر کر تباہ ہوا تھا. اور دنیا بھر میں آج نرسوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. انسانیت کی خدمت میں پیش نرسوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. وہ نرسیں جو دن رات مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہیں, جو نہ صرف تیماردار ہیں بلکہ استاد, مشیر, وکیل اور مسیحا بھی ہیں. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں رپورٹ. نرسنگ ایک ایسا شعبہ جو صرف پیشہ نہیں بلکہ عبادت بن چکا ہے. دنیا بھر میں آج 12 مئی کو نرسوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تاکہ ان کی بے لوث خدمات, جذبہ خدمت اور قربانیوں کو سراہا جا سکے. یہ دن ہر سال فلورنس نائٹنگل کی سالگرہ پر منایا جاتا ہے جو جدید نرسنگ کی بانی کہلاتی ہیں. نرسوں کے عالمی دن کو پہلی بار 1956 میں نرسوں کی بین الاقوامی کونسل نے باقاعدہ طور پر منایا. اس کا مقصد نرسنگ کے شعبے میں کام کرنے والے افراد کے حقوق, مسائل اور ان کی خدمات کو اجاگر کرنا تھا. شعبہ صحت میں نرسوں کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. یہی نرسیں ہیں جو ایک مریض کے ساتھ 24 گھنٹے موجود رہتی ہیں, ان کی طبی, ذہنی اور جذباتی دیکھ بھال کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک معمولی غلطی کی صورت میں تنقید کا پہلا نشانہ بھی وہی بنتی ہیں. کووڈ-19 کے دوران جب دنیا گھروں میں بند تھی, یہی نرسز فرنٹ لائن پر لڑ رہی تھی. اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر مسلسل شفٹیں کر کے انسانیت کو بچانے کی جد و جہد میں مصروف تھی. لیکن اس جنگ نے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر گہرے اثرات بھی ڈالے. ماہرین کے مطابق نرس صرف ایک تیماردار نہیں بلکہ وہ ایک معلمہ, مفکر, مشیر اور بعض اوقات موجد بھی ہوتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر شیرون ایم بینسٹین کہتی ہیں, نرسنگ ایک معزز ترین پیشہ ہے. نرسیں شعبہ صحت کی روح اور دل کی مانند ہے.